Good morning, everyone. Today we'll discuss past tense. So we'll continue our discussion from tomorrow. So let us begin the class with a song. So am I audible to you? So can you hear me? हाँ हाँ आ रही आ रही So let us all sing along. You can remain on muted mode and sing along. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Okay, so let us revise what we have discussed in our previous class. So we discussed about past perfect continuous tense, and we also uh, so not past perfect. We have discussed about present perfect continuous, right? And past simple past tense. So present perfect continuous में if you remember what was the signature हिंदी में कैसे था से रहा है से रही है से रहा से रहे हैं है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हियर इट इज रॉन्गली पेस्टेड ये गलत है डोंट सी इट सो जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में व्हाट इज द हाउ यू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी में अगर सेंटेंस देखें तो ऐसी सेंस आती है से रहा है से रहे हैं से रही थी है ना से रही है मतलब जैसे कोई काम हो रहा है ना present continuous makes sense that something is going on है ना something is going on but what is the difference in present perfect continuous it tells you more कि कब से हो रहा है ना मंडे से हो रहा है so that sense comes inside so you use present perfect continuous tense so what is the rule what is the rule for present perfect continuous ओके सो यू रिमेम्बर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें क्या होता है कि सिंस और फॉर भी लगता है ओके सो यू आल्सो यूज सिंस और फॉर टू इंडिकेट से है ना मंडे से सिंस मंडे 2 साल से so for 2 years so you also use since and for and all other rules are similar to the structure is entirely same that you use helping verb and you use verb plus ing and whenever you want to write your sentence in interrogative आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल कम एट द फर्स्ट ओके इन द सेंटेंस यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट ओके सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन सिंपल पास्ट की क्या पहचान है था थे थी है ना if you are simply saying कि something has happened in the past so you just can recognize this tense by seeing that this is simply indicating like I wrote a letter so this is simple past मैंने एक पत्र लिखा है ना था थे थी and sentence also ends with a e okay so like मैंने एक पत्र लिखा मैं मुंबई घूमने गई है ना so all these are simple past sentences what happens to the rule second form of verb we use a second form of verb in simple past and also if you want to use helping verb if in the sentence helping verb is required so you use did and with did you use first form of the verb okay so like he wrote a letter उसने एक पत्र लिखा so wrote is write wrote written second form of verb is used here okay so let us revise by doing this exercise what you have to do in this exercise is you have to form negative and interrogative sentences out of these okay
I wrote a letter. I wrote a letter. You have to form negative and interrogative sentences. So let us quickly go through all these. So you write negative, it's negative, and this it's interrogative sentence. Okay, I wrote a letter. I wrote a letter. I did not write a letter. It is correct. Yes. I did not write a letter. जब भी did आता है, तो you use first form of verb, write. Okay, not wrote. I didn't wrote a letter is wrong. I did not write a letter is correct. Okay. So form it in interrogative. What will be its interrogative? Did I write a letter? Correct. Yes. Did I write a letter? Is correct. Yes. So next one. He sang a song. He sang a song. He sang. He did not sing a song. Correct. Yes. So for interrogative, what you will do? For interrogative, to make its interrogative. Did he sing a song? Correct. Yes. Did he sing a song? Question mark. Okay. Okay. Did he sing a song? It is correct. Yes. We went to Mumbai for a holiday. We went to Mumbai for a holiday. So how will you form negative and interrogative out of this? We went to Mumbai for a holiday. We did not go. Yes, absolutely correct. Yes, go, went, gone. So go is the first form. So if you are using did, then what you will use? Go. Okay. So we did not go to Mumbai for a holiday. Yes, correct. So how about interrogative? Did we go to Mumbai for a holiday? Correct. Yes. Yes, absolutely correct. Yes. Next one, we shouted. We shouted. We did not shout. Yes. We did not shout is correct. Shout, shouted, shouted. Shout is the first form of verb. Did we shout? With a question mark. Correct. Yes. You have to also take care of punctuation. Okay. So next one. She made a big basket. She made a big basket. So what? How to form its negative? She did not make. Yes, correct. Absolutely correct. Make, made, made. Okay. So make is first form of verb. If you are using did, you will use make. Okay, not made. He did not make a big basket. Okay. So how about interrogative? Did she make a big basket? Correct. Yes. Did she make a big basket? It is correct with a question mark. Okay. So let us move forward. Now we'll discuss about past continuous tense. So what is its signature? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? So it is similar continuous, है ना? It is also showing some work is happening. Okay, रहा था, रही थी, but you are telling something about past कि वह गाना गा रहा था, वह मंदिर जा रही थी. So you are telling about past. Okay, so it is not in present. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है तो वो कैसे होती है? प्रेजेंट में, है ना? वह खाना खा रही है, अभी खा रही है. लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या? वह खाना खा रही थी, पहले खा रही थी, है ना? पास्ट में हो रहा था ये काम. तो रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी में ऐसे पहचानते हैं. ठीक है. और इंग्लिश में व्हाट इज द सिग्नेचर? यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके. So in simple affirmative sentence, what if subject is singular,
अगर आपका कर्ता एक वचन है तो यू विल यूज वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. एंड इफ इट इज प्लूरल, अगर कर्ता बहुवचन है तो आप वर्ड यूज करोगे. ओके, वर्ड. Okay, we verb की first form plus ing. Then if you want to form negative, so simply not will come after the helping verb. Was, were, not. Okay. For interrogative, what will happen? This helping verb will come at the first. Was, then subject, then your rest part of the sentence. For interrogative negative, what happens? First you will write your helping verb, then subject, then the negative sense. Okay. Was, subject, then was or were your subject, then follows your negative word, not. Okay. So rest of the sentence is similar. So now let us see some examples. मैं किताब पढ़ रहा था. मैं किताब पढ़ रहा था, है ना? I was reading a book. Yes, I was reading a book. So it is something that you are saying about the past. कि मैं किताब पढ़ रहा था. You are recalling an incident and you are saying कि मैं किताब पढ़ रहा था. Okay, so it is past continuous tense. वे बातें नहीं कर रहे थे. They were not talking. Okay, so यहाँ पे जो I मतलब they were not talking. So here it is plural. So they were not talking. Okay. क्या वह लगातार आपको घूर रही थी? So was she constantly staring at you? Okay. घूर रही थी. Was she के साथ was आ रहा है. क्या वह खाना नहीं खा रहा था? Was he not eating food? So he, your helping verb is at the first, then your subject, then negative word, then first form of verb plus ing. Eat के साथ ing आ गया. Okay. So then you are asking question and with a negative sense, interrogative negative. Okay. तुम क्या कर रहे थे? तो you are asking a question कि तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? Okay. What were you doing? So first we'll write क्या, है ना? What. Then your helping verb will come. Were you doing? Okay. So let us do exercise. So so that we hold a firm grip on this tense. तो तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? So can you form English? Convert it into English. तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? So is there any problem? Can you form this English out of this? तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? Hello. क्यों नहीं कर रहे थे? Why were you not doing your work? Okay, why were you not doing your work? So yes. क्या वह सच बोल रहा था? क्या वह सच बोल रहा था? Was he speaking truth? Okay, was he speaking truth? तो was आएगा, है ना? Was he speaking truth? Okay, talking will not come here. So talking comes in a different sense, but यहाँ पे सच बोल रहा था, speaking truth. Okay, speaking is correct here. Okay, so क्या तुम जोर से चिल्ला नहीं रहे थे? क्या तुम जोर से चिल्ला नहीं रहे थे? Were you not shouting loudly? Yes. Were you not shouting loudly? Okay. कल वर्षा नहीं हो रही थी. Are you finding these sentences difficult? Is there any problem? Hello.
So are you able to understand about how we are forming sentences in English? So what are the rules? Are you following? Okay, where are other people? So you all have to participate. If you are not doing exercise, then you will not get all these tenses. So here, if you want to understand tense, then you have to do the exercise. Okay, so you have to participate. Okay, I request all to participate, because just try it. If it is wrong, then also it is okay, and I will correct it. So if it is wrong, then also it is okay. Just write it down. Okay. कल वर्षा, ओके, क्या तुम जोर से चिल्ला नहीं रहे थे? दैट वी हैव डन. कल वर्षा नहीं हो रही थी. कल वर्षा नहीं हो, ओके, सो हियर क्वेश्चन मार्क विल नॉट कम. कल वर्षा नहीं हो रही थी. इट इज अ सिंपल सेंटेंस. आई डोंट नो व्हाई आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क्स इन ऑल दिस, सो इग्नोर इट. ओके, सो यहाँ पे कल वर्षा नहीं हो रही थी. इट इज नॉट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क शुड नॉट कम हियर. कल वर्षा नहीं हो रही थी. ओके, so how will you form its English? हो रही थी. ये क्वेश्चन नहीं है. ओके, सी क्लियरली क्वेश्चन मार्क इज रॉन्ग हियर. कल वर्षा, यू आर सिंपली सेइंग कल वर्षा नहीं हो रही थी. ओके, इट वाज नॉट रेनिंग yesterday. ओके, so it was not raining yesterday. ओके, सो हो रही थी, इट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हो रही थी. So what is the rule for past continuous tense? You use was and were as a helping verb, and then in the verb you use ing. Okay, it was not raining yesterday. Okay, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी. Question mark will not come. Simply पूर्ण विराम will come here. Okay, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी. This is a simple sentence, not a question. The birds were flying in the sky. Correct. Yes. Yes, it is correct. हाँ. वह उससे क्या पूछ रहा था? वह उससे क्या पूछ रहा था? This is a question. So वह उससे क्या पूछ रहा था? What was he asking? What was he asking to him? उससे, है ना? What was he asking to him? Okay. So मैं झूठ कब बोल रहा था? So now I want to have a comment from all of you. So are you finding it difficult to follow this tense? Are you finding it difficult? Everyone has to comment now. So are you getting what I am saying? Hello? Hello? So are you getting what I am saying? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है मैम. Okay, so where are other people? So I am not, one or two people are just answering, because I am more concerned, because आप exercise नहीं करोगे, then you will not, I am just, then it will appear that I am just talking and talking, है ना? अगर आप exercise नहीं करोगे, then it is of no use. आप tense नहीं सीख पाओगे. Okay, so I request all to comment. If you are not if you are not comfortable, you are just thinking whether I am writing correct or right or wrong, so but you have to comment. Okay, so now I think I can see all the answers and correct it. So you have all, you should answer. Okay, so that is how you will learn. Okay, so Radha, क्या था? वह उससे क्या पूछ रहा था? Okay, this we have done. मैं झूठ कब बोल रहा था?
मैं झूठ कब बोल रहा था? When was I telling a lie? Yeah, yes. When was I lying? Lying. When was I telling a lie? Okay. When कब बोल रहा था, है ना? When. Okay. So next one, राधा बस से स्कूल जा रही थी. अच्छा, I was when the lying. See here, in the previous sentence, I should tell you कि हमेशा टेंस में पहले you will ask question. Question का जो word है वो पहले आएगा, जैसे when पहले आएगा, okay? Then comes your helping verb. Was आपका helping verb है. So when was, okay? Then comes your subject. फिर आपका subject आएगा. When was I telling a lie? Then comes your verb, okay? Then object, okay? So when was I telling a lie? Okay. So next one. राधा बस से स्कूल जा रही थी. From नहीं आएगा. You don't remember we have discussed prepositions. उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम कहते हैं बस से, ट्रेन से, then we use by, okay? Not from. From is also say, but if we are referring about some means of transport, so we don't say from. We say by. Okay. Okay. So Radha bus से school जा रही थी. Radha was going to school by bus. Okay. So question mark will not come here. So it is a simple sentence. वह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था. वह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था. हाँ, he was not joking. He was not joking, or you can write it more, write it in a different way. Like he was not mocking at you. है ना, मजाक उड़ाना, mock करना. He was not mocking at you. He was not making joke on you. So if you want to use the word joke, so you have to use joking is a joking, है ना? So I don't think joking will come here. He was making a joke on you. He was joking. Joking is in a different sense. Okay. He was not mocking at you. Okay. Yes. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? क्यों के लिए क्या यूज होता है? बाय. ओके. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो सेंटेंस में? बाय. ओके. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? बाय. देन कम्स योर हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ वर्ब. ओके. बाय वर्ब, फिर आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट. तुम मतलब यू. देन सुन रहे थे, लिसनिंग, है ना? लिसनिंग. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? Why were you not listening to my words, or why were you not listening to me? Simply it can also come. Okay. Okay. So okay, why were you listening not? Okay. So yes, why were you not listening to me? Yes, why were you not listening to me? Okay. वे सब हंस रहे थे. वे सब हंस रहे थे. सब. Also see, सब all, है ना? They were all laughing. Yes, they were all laughing. Yes. So you have also to include this सब, है ना? All. Yes, correct. मैं किसी को परेशान नहीं कर रही थी.
मैं किसी को परेशान नहीं कर रही थी। परेशान की इंग्लिश क्या होती है? टीज। डू यू रिमेम्बर परेशान की इंग्लिश क्या होती है? टीज, TEASE। ओके, TEASE, परेशान करना। तो मैं किसी को परेशान नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट टीजिंग एनी वन। यस, करेक्ट। एनी वन, किसी को। आई वॉज नॉट टीजिंग एनी वन, करेक्ट, यस। somebody का मीनिंग होता है कोई। somebody pass me a glass of water, कोई मुझे वो पानी दे दो, है ना, ऐसे करके। so somebody is not correct here, anyone is correct। वह तुम्हें क्या बता रहा था? वह तुम्हें क्या बता रहा था? वह तुम्हें क्या बता रहा था? now I want 14 comments, okay, so you all have to write something। you can write anything but yeah, write it। okay, वह तुम्हें क्या बता रहा था? क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, है ना, व्हाट पहले आएगा, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट वाज, है ना, व्हाट वाज ही, बताना। व्हाट वाज ही सेइंग टू यू, क्या बता रहा था? व्हाट वाज ही सेइंग टू यू? व्हाट ही वाज टॉकिंग फॉर यू। ओके, टॉकिंग इज नॉट करो, व्हाट वाज ही सेइंग टू यू। ओके, व्हाट वाज ही, पहले व्हाट आएगा, फिर वाज आएगा, फिर ही आएगा, तो टॉकिंग इज नॉट करेक्ट। ओके, देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन टॉकिंग एंड सेइंग एंड टेलिंग। ओके, आई विल टेल यू सेपरेटली कि कब हम टॉक यूज करते हैं, कब हम से यूज करते हैं, और कब हम यूज करते हैं। आई विल नोट इट डाउन एंड आई विल डिस्कस विद यू। टॉक, ओके, से and tell, I will discuss ki when they are used separately। okay, what was he saying to you? So you have to put a question mark। राधा मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही थी। राधा मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही थी। फुसफुसाना मतलब क्या होता है? Can anyone tell what is the English of फुसफुसाना? Whisper. Whisper, yes, yes, correct। so now you have to make this sentence in English। राधा, आगे was, आगे now you will use verb। कुछ फुसफुसा रही थी, है ना, तो whispering something in my ear। so Radha was whispering something in my ear। समथिंग, है ना, आगे भी देखो, कुछ की इंग्लिश क्या होती है? समथिंग इन माई ईयर। यस, करेक्ट, करेक्ट। सो हियर क्वेश्चन मार्क विल नॉट कम, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके, जस्ट पूर्ण विराम विल कम हियर। क्या तुम रोज दवाइयां समय से ले रहे थे? क्या तुम रोज दवाइयां समय से ले रहे थे? यू के साथ वर आएगा, है ना, तो क्या वर यू, आगे ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। वर यू दवाइयां ले रहे थे? दवाइयां ले रहे थे, टेकिंग, है ना, लेना मतलब टेक, टेकिंग। वर यू टेकिंग मेडिसिन डेली, समय से, ऑन टाइम। ओके, आप अगर आपको ये लगे कि सेंटेंस कैसे बनाए, तो यू जस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई आपको पहले क्या लिखना है। यू जस्ट राइट पहले क्या लिखना है। दिस इज अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट आइदर अ हेल्पिंग वर्ब और अ क्वेश्चन। आपको सेंटेंस में पहले या तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका वर्ड लिखना है, व्हाट, वेयर, है ना, व्हेन। फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। फिर आप देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर आप देखो कि वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, उसके लिए लिखो।
फिर ऑब्जेक्ट देखो, फिर कुछ एडिशनल कोई प्रेपोजिशन है सेंटेंस में वो देखो। जैसे क्या तुम रोज दवाइयां समय से ले रहे थे? सो वर यू, वर यू है ना, तो क्वेश्चन के लिए वर आपने हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया, वर यू, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद ले रहे थे वर्ब आएगा अब, है ना, टेकिंग, ले रहे थे, टेकिंग, वर यू टेकिंग मेडिसिन, तो दवाइयां मेडिसिन, एस है ना, प्लूरल फॉर्म यूज होगी। वर यू टेकिंग मेडिसिन, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या ले रहे थे? दवाइयां, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका मेडिसिन, है ना, वर यू टेकिंग मेडिसिन। अब आगे देखो क्या बचा सेंटेंस में, रोज, है ना, डेली, रोज की इंग्लिश क्या होती है? डेली, सो नाउ यू विल राइट डेली, तो वर यू टेकिंग मेडिसिन डेली। अब आगे देखो कि सेंटेंस में क्या बचा, समय से, ऑन टाइम, so your whole sentence is complete. So were you taking medicines, were you taking medicines daily on time? Okay, so this is the correct, this is the correct sentence and full sentence. Okay, then in the end you will write a question mark, you will just put a question mark, okay, to indicate that it is a question. Then next one, let us see how to make it English. मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरे है ना, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा, दिस सेंटेंस इज लिटिल डिफरेंट, ट्राई टू मेक इट्स इंग्लिश, कैसी भी, वट एवर यू थिंक, यू कैन मेक, जैसा आपको लग रहा है आप इसकी इंग्लिश यू कैन फॉर्म, देन आई विल करेक्ट यू। I was pain on my head. Okay, I will correct it. So here, see, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मेरे सर, मेरे सर है ना, तो मेरे सर, यू कैन सी कि इट इज, जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हो रही, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे सर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, माई हेड, तो डू यू रिमेम्बर, हेड इज नाउन हियर, बट the subject से start नहीं हो रहा है, it is starting from adjective. So I will tell you how to form its English. मेरे सर में दर्द हो रहा था, either you can form its English by like पेनिंग, पेनिंग इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, है ना, पेनिंग नहीं यूज करेंगे। आई वॉज हैविंग हेडेक, तो हेडेक सर दर्द, ओके, सो हेडेक, हेडेक यू कैन, सर में दर्द को वी से व्हाट वाज, व्हाट डू वी से, हेडेक, ओके, so I was headaching in my head, no, so headaching is not correct, headache is सर दर्द, ओके, अब सर में दर्द होना को हम हेडेकिंग नहीं लिख सकते, ओके, सो हेडेक इज सर दर्द, सो या फिर ये भी लिख सकते हो, आई वॉज हैविंग पेन इन माई, आई वॉज हैविंग पेन इन माई हेड, है ना, बट यूजुअली इट इज नॉट written like that, so I was having headache, बस I was having headache, so it is complete. Okay, so are you getting, are you getting how to form? I was pain on my head, so I was pain on my head, see, पहले तो you have to see कि टेंस कौन सा है ना, सबसे पहले टेंस पे ध्यान दो कि हो रहा था मतलब रूल याद करो सबसे पहले कि was, were हेल्पिंग वर्ब होते हैं, चलो was you use was, okay, correct, but now in the verb, then identify what word you will use, verb you will use, then you have to put ing, है ना, you have to put ing, so I think it is clear, okay. मैं नीले आसमान को देख रही थी, मैं नीले आसमान को देख रही थी, तो मैं आई, है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा इसमें, टेंस कौन सा है, सबसे पहले देखो टेंस कौन सा है, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, रही थी,
सो वॉज वर यूज होगा इसमें, है ना. तो आई वॉज, आई के साथ वॉज आता है. आई वॉज, फिर उसके बाद वर्ब ढूंढो, कहाँ है वर्ब. देख रही थी. आई वॉज लुकिंग, लुकिंग, ओके, लुकिंग इज करेक्ट. नीले आसमान को. आई वॉज लुकिंग. आगे व्हाट विल बी preposition हियर, को, है ना. मैं नीले आसमान को देख रही थी. आई वॉज लुकिंग. आगे एट द ब्लू स्काई. इन नहीं, एट द ब्लू स्काई. लुक, जब भी आप लुक यूज करते हो, लुक, लुक एट, है ना. सो यू यूज एट. लुकिंग एट द ब्लू स्काई. ओके. तुम ये सब कैसे कर रहे थे. तुम ये सब कैसे कर रहे थे. हाउ, कैसे. सबसे पहले ढूंढो जो क्वेश्चन है उसका, उसकी इंग्लिश क्या होगी. हाउ, कैसे, है ना. अब क्वेश्चन ढूंढ लिया. अब उसके बाद हाउ. उसके बाद ये सोचो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा. तो रहे थे, तो वॉज वर में से कुछ यूज होगा. फिर सब्जेक्ट ढूंढो कहाँ है, तुम, है ना. यू है, यू के साथ वर आता है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वर. तो हाउ वर. अब आगे देखो, तुम, यू, हाउ वर यू. ओके. ये सब अब ढूंढो वर्ब का है. कर रहे थे, डूइंग. हाउ वर यू डूइंग. ओके. ये सब, ऑल दिस, है ना, ये सब. तो हाउ वर यू डूइंग ऑल दिस. तो क्वेश्चन मार्क विल कम हियर. दिस इज द क्वेश्चन. हाउ वर यू डूइंग ऑल दिस. ओके. ये सब. हाउ वर यू डूइंग ऑल दिस. ओके, क्वेश्चन मार्क. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. तो कैसे प्रोसीड करना है, पहले ढूंढो कि सब्जेक्ट कहाँ है. मैं, आई, है ना. अब उसके बाद सोचो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है. रहा था, तो वॉज आएगा या वर आएगा. आई के साथ वॉज आता है. आई वॉज. ओके. सो नाउ लेट अस लुक एट, नाउ लेट अस सर्च फॉर वर्ब. वर्ब देखो कहाँ है. चाह रहा था. वांटिंग. आई वॉज नॉट वांटिंग. थिंक अगेन. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. वांटिंग. सी, जो वांटिंग होता है वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. वांट का जो मीनिंग है और वांटिंग का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. तो वांट में कभी आईएनजी नहीं लगता. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. तो कुछ ऐसे सिंपल कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो होते हैं कंटिन्यूअस, लेकिन आप उनको कंटिन्यूअस की तरह बनाते नहीं हो. तो दिस सेंटेंस इज नॉट लाइक दैट. आई वॉज नॉट वांटिंग. so it should not come. मैं ऐसा नहीं चाह रहा था. देन चाह रहा था. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. Okay, it can work. I was not wanting this will not work, but I was not expecting this. Willing this. I was not willing this. Okay, I was not wanting this. Wanting is wrong, but I was not expecting this, and I was not willing this. So they are correct. Yes, willing or expecting. वह तुम्हें क्यों रोक रहा था. वह तुम्हें क्यों रोक रहा था. वह तुम्हें क्यों रोक रहा था. रोक रहा था. स्टॉपिंग, सिंपली स्टॉपिंग. वाई, क्यों, है ना. क्यों का क्या आएगा, वाई. वाई वॉज ही स्टॉपिंग यू. वाई वॉज ही स्टॉपिंग यू. सिंपली. ओके. स्टॉपिंग टू यू नहीं आएगा. स्टॉपिंग यू सिंपली.
Why was he stopping you? Okay. राधा तुमसे बात नहीं कर रही थी. राधा. राधा was. राधा was. आगे. बात नहीं कर रही थी. Talking. है. राधा was not talking to you. तुमसे. राधा was not talking to you. Okay. मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था. मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था. I was आगे आगे बढ़ रहा था. I was improving rapidly. I was improving rapidly. या फिर I was progressing rapidly is also correct. Yes. Yes, it is correct. Progressing भी progressing is I think more correct here. आगे बढ़ना progressing. Okay. तुम क्या पढ़ रहे थे? तुम क्या पढ़ रहे थे? क्या? What? है ना? What were you reading? पढ़ रहे थे reading. Okay. वह इतना हंस क्यों रही थी? वह इतना हंस क्यों रही थी? Why? क्यों? है ना? Why? Why was she? Why was she? हंसना. हंस क्यों हंस रही थी? है ना? Laughing. Why was she laughing so much? This much. इतना. है ना? या that much. Why was she laughing that much? Okay. Okay, so I think this tense is clear. Past continuous tense. So let us move forward towards past perfect. Okay. So we have studied present perfect tense. So it is now we are studying past perfect. What is the difference between present perfect tense? There, if you remember, what is the signature? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, है ना? So चुकी या ये है ना? So थे नहीं आता उसमें, था थे, थी नहीं आता उसमें, या ये या फिर चुका चुकी, मतलब ऐसा सेंस आता है. प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा सेंस आता था कि ये काम हो चुका है, ये काम हो गया है. तो लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या, आप कोई पास्ट मतलब पास्ट की बात बता रहे हो कि वो काम हो चुका था. मतलब आप पास्ट के इंसिडेंट को बता रहे हो. और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि आप प्रेजेंटली बता रहे हो, कि प्रेजेंट के इंसिडेंट को बता रहे हो कि ये काम हो चुका है ना? और ये काम हो चुका था, तो आप कोई पिछली बात बता रहे हो कि ये काम हो चुका था. ओके. सो यू कैन सी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थे, ये थी, ये थे, है ना? जिससे सेंस आए कि काम हो चुका था इन द पास्ट. सो दिस इज दैट इज हाउ वी फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस. और इसके रूल क्या है इंग्लिश में? वहां पे हैज हैव यूज करते हैं. इफ यू रिमेम्बर, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे भी यूज होती है. और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? बस हैड. हैज हैव की जगह वी विल यूज हैड, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल रिमेन एज इट इज. ओके. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Subject, then comes your had, plus third form of verb plus object. So helping verb is used, had. Okay. Then third form of verb, affirmative mein simply we write the sentence like this. Then what about negative? After helping verb you will use not. Okay. So negative word will come follow the helping verb. So subject plus had plus not plus third form of verb will come. Then comes your object. Okay. So what about interrogative? If you want to ask a question, then how will you form the sentence? First you will write your helping verb had. Okay. Then comes your subject, then your third form of the verb, and then object. Okay. So what about interrogative negative? Same structure follows, है ना?
तो हैड आता है पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं, नहीं की सेंस, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल्स. बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी. इट हैड रेन्ड, है ना. हो चुकी थी, कोई पुराना किस्सा सुना रही हूँ कि बारिश उस टाइम हो चुकी थी. तो इट हैड रेन्ड, तो हैड रेन्ड, तो रेन रेन रेन. ओके. उसने गाना नहीं गाया था, शी गाया था, तो या था. ओके. सेंस बन रही है कि कोई काम पास में हो चुका था. तो उसने गाना नहीं गाया था, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, हैड नॉट. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है, हैड और संग. सिंग सैंग संग, तो संग इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग. क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? अ क्वेश्चन, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. हैड ही टॉक टू यू? हैड, है ना. योर हेल्पिंग वर्ब विल कम एट द फर्स्ट एंड देन योर सब्जेक्ट, then in the verb you will use your third form. Talk, talked, talked. Okay, to you, तुमसे. Okay, had he talked to you? क्या तुमने अपना काम स्वयं नहीं किया था? Had you not done your work yourself? So had, your helping verb will come at the first, then subject, then negative word not. So do, did, done, third form of verb. Okay, done is the third form of verb. Your work yourself, खुद से, है ना. तुमने उसे चुपके से क्या दिया था? अब नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग क्वेश्चन, क्या, व्हाट. ओके. सो फर्स्ट यू विल राइट योर क्वेश्चन व्हाट, देन योर हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैड यू गिवन हिम सीक्रेटली. आपने उसे क्या दिया था चुपके से? ओके. व्हाट हैड यू गिवन हिम सीक्रेटली. सो यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस. So now for present perfect, we'll look at more examples. Present perfect में we also form compound sentences like one sentence follows the other. Okay, like मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. So there are two separate, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले और गाड़ी छूट चुकी थी. So one sentence follows the other and you are just combining it, है ना. और कैसा सेंस आता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में ही कैसा सेंस आता है कि एक काम पहले हुआ था और एक काम बाद में हो रहा है. सो जैसे ये सारे सेंटेंस में आप देखो कि पहले बाद, है ना. समथिंग समथिंग लाइक पहले बाद इज कमिंग एंड यू आर सेइंग समथिंग कि ये काम इससे पहले हुआ था, ये काम इससे बाद में हुआ था. यू आर सेइंग समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज अ रूल कि जो काम पहले हुआ था, जो काम पहले हुआ था उसके उसको उसके उस सेंटेंस के पार्ट को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे बनाते हो. ओके. जो काम पहले हुआ था सेंटेंस में, जो पता चल रहा है कि जो काम पहले हुआ था उस पार्ट को यू मेक इट इन प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैड. हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट जो काम बाद में हुआ था, जो काम फॉलो करता है बाद में हुआ था, उस पार्ट को, उस सेंटेंस के पार्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो. पास्ट इंडेफिनिट जिसमें जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम. इफ यू रिमेंबर, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज. सो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले मतलब, अब इस सेंटेंस से कैसा, क्या पता चल रहा है आपको कि क्या हुआ था? स्टेशन पर मैं पहले पहुंचा था या गाड़ी छूट चुकी थी पहले? गाड़ी छूट चुकी थी पहले, है ना. मैं बाद में पहुंचा था स्टेशन पे. तो पहले काम क्या हुआ था? गाड़ी छूट चुकी थी. तो इन ऑल दीज टाइप, ये टाइप है सेंटेंस का, इन सारे टाइप्स में जो लास्ट पार्ट होता है उसको आप पहले लिखते हो. ओके. तो गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट. ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट. So it is present perfect. This is past perfect. Okay, this is past perfect. The train had left. जो पहले काम होता है that you form in past perfect. Okay, the train had left. So had is used. Leave, left, left. So left is the third form of verb. The train had left. पहले, before. अब ये वाला, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से, मेरे स्टेशन पर पहुंचने, I reach the station. Before I reach the station.
ओके, बिफोर आई, मेरे स्टेशन पर, आई रीच द स्टेशन, रीच या रीच, so it is a second form of verb. So are you getting कि सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे को फॉलो करता है, और व्हाट हैपेंस कि एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है. सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस में देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है. तो जो काम पहले हुआ है उसे उसमें आप प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हो. और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, है ना. अगर आप एक्सरसाइज करोगे देन यू विल जस्ट कैच इट कि हाउ हाउ इट वर्क्स. सो मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट. बिफोर, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, है ना. ट्रेन छूट चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा. मेरे स्टेशन, तो कंबाइनली क्या हो जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस लुक एट चांद. चांद निकलने के बाद, अब यहाँ पे बाद यूज हो रहा है ना. आसमान से सितारे नहीं चमके थे. व्हाट डू यू थिंक, कौन सा पहले हुआ था, चांद पहले निकला था या आसमान में सितारे नहीं चमके थे. चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे. मतलब जो चांद है वो पहले निकला था. पहला 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 काम क्या हुआ था इस सेंटेंस से, इफ यू सेंस चांद पहले निकला था और फिर आप बोल रहे हो चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे. आसमान में सितारे नहीं चमके थे चांद निकलने के बाद. तो पहले क्या हुआ था, चांद निकला था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आसमान में सितारे नहीं चमके. सो दिस पार्ट यू हैव टू मेक इट इन पास्ट परफेक्ट एंड दिस पार्ट यू हैव टू मेक इट इन पास्ट इंडेफिनिट. तो लेकिन हमेशा सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस. द स्टार्स डिड नॉट शाइन, सितारे नहीं चमके थे. द स्टार्स डिड नॉट, डू यू रिमेम्बर पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट यूज होता है. डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट शाइन इन द स्काई, आसमान में. ओके, आफ्टर, बाद, बाद के बाद, आफ्टर. द चांद निकलने, द मून हैड राइजन. So what this sentence is making, what sense this is making? The stars did not shine in the sky. तारे नहीं निकले, है ना, आसमान में तारे नहीं निकले. तो कैसी सेंस आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट की. आसमान में तारे नहीं निकले. और पास्ट परफेक्ट की, द मून हैड राइजन, कि चांद निकल चुका है. मून हैड राइजन, चांद निकल चुका है. So these two sentences are making sense of past perfect and past indefinite, and they are joined by after. Okay, so these type of sentences are formed like this. क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था. तो इस सेंटेंस से कैसी आ रही है, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले. तो सबसे पहले क्या हुआ था, सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है कि माता जी ने खाना बना लिया था. दिस ये पहले, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये क्या पहले हुआ था और ये बाद में हुआ. सो what will come, so this part of the sentence you will form in past perfect. Had the mother prepared the food, had. Okay, had will, क्योंकि question, you are asking question. Had the mother prepared the food, prepared. Okay, so prepared is the third form of verb. Had the mother prepared the food, after, पहले. Okay, had the mother prepared the food, before आएगा यहाँ पे. Okay, before you reached at home. Okay, पहले. So before will come here. There is a correction. So had the mother prepared the food before you reached at home. क्या माता ने खाना बना लिया था आपके पहुंचने से पहले, बिफोर. ओके, यू रीच्ड एट होम, तो यू रीच, आप घर पहुंचे. सो इट इज व्हाट, यू रीच्ड एट होम, आप घर पहुंचे. so, तुम घर पहुंचे. सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट. यू रीच्ड एट होम, आप घर पहुंचे. एंड इट इज हैड द मदर प्रिपेयर्ड द फूड, माता जी ने खाना बना, क्या माता जी ने खाना बना लिया था. सो इट इज past perfect. So combinedly the meaning is, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था. Had the mother
prepared the food before you reached at home. Okay, are you getting or it is are you getting or it is difficult for you? Are you getting what I am saying? Are you getting? Hello, is it all right? आप एक बार पीपीटी में क्लिक कर दीजिए, हट गई थी, किसी ने कर दिया। So is it not visible now? हाँ, नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, अब हो रहा है। ओके, सो क्या तुम बिजली जाने के बाद अपने घर के बाहर नहीं गए थे? बाद, है ना, इसका मतलब पहला वाला जो है, पहला वाला पार्ट वो पहले हुआ है और पीछे वाला जो है वो बाद में हुआ है ना। जब भी बाद आए तो इजी, मतलब इजी वे क्या है पहचानने का, जब भी बाद आए सेंटेंस में तो इसका मतलब जो पहला पार्ट है वो पहले हुआ है और जो दूसरा पार्ट है वो बाद में हुआ है। ओके, सो देन क्विकली यू कैन सी कि जो ये बाद वाला पार्ट है जो मतलब ये बाद में जो हुआ है ये आपको किस किस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पहले हुआ था उसे यू हैव टू फॉर्म इट इन पास्ट परफेक्ट। ओके, सो डिड यू नॉट गो इनसाइड आउटसाइड योर होम? आपने घर के बाहर नहीं अपने घर के बाहर नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो आउटसाइड योर होम? क्या क्या आप अपने घर के बाहर नहीं गए, है ना। सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर, बाद, द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन, जब बिजली चली गई थी, है ना। क्या तुम बिजली जाने के बाद, सो फर्स्ट इसका मतलब ये पहले हुआ, बिजली पहले गई और आप घर के बाहर बाद में पूछ रहे हैं कि क्या आप बिजली जाने के बाद आप बाद में गए थे क्या घर के बाहर? सो पूछ रहे हैं ना, नहीं गए थे क्या, है ना, यू आर आस्किंग। सो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, पहले हो रहा है और सेकंड पार्ट बाद में हो रहा है। सो सेकंड वाला पार्ट यू आर फॉर्मिंग इट इन पास्ट इंडेफिनिट और जो फर्स्ट वाला पार्ट है यू आर फॉर्मिंग इट इन पास्ट परफेक्ट। ओके, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे? पहले, जब भी पहले आए सेंटेंस में देन यू रिमेम्बर कि मेरे घर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो हुआ है बाद में, वो बाद में हुआ है और जो सेकंड पार्ट है वो पहले हुआ है। ओके, मतलब बच्चे कहाँ, आप पूछ रहे हो बच्चे कहाँ चले गए थे? बाद में मैं मेरे घर पहुंचे, मैं बाद में घर पहुंचा, है ना, ऐसी सेंस आ रही है। बच्चे पहले चले गए थे, कहाँ चले गए थे यू आर आस्किंग, और यू हैव रीच्ड होम आफ्टर। सो दिस सेंटेंस इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ सेंस। सो हाउ विल यू फॉर्म इट? बच्चे कहाँ चले गए थे? सो फर्स्ट इट इज हैपनिंग, सो वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन, पास्ट परफेक्ट, हैड, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? हैड द चिल्ड्रन गॉन, गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। सो वेयर हैड द, कहाँ, कहाँ के लिए यू विल यूज वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैड, द चिल्ड्रन, नाउन, गॉन, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। बिफोर, पहले, आई रीच्ड होम, तो इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट। आई रीच्ड होम, रीच्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, है ना। तो हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर। सो आर यू गेटिंग? सो हाउ इट इज फॉर्म? तो नेक्स्ट वन, उसने बाहर आने से पहले, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे? उसके बाहर आने से पहले, पहले, है ना, इसका मतलब ये पहले हुआ है, तुम अंदर क्यों नहीं गए थे। आप पूछ रहे हो तुम अंदर क्यों नहीं गए थे उसके बाहर आने से पहले। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज मेकिंग सेंस कि ये पहले मतलब ये दिस इज हैपनिंग फर्स्ट देन दिस वन। ओके, सो व्हाट यू विल डू, इसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। वाई हैड यू नॉट गॉन, है ना। तो वाई, क्यों, वाई हैड, जो पास्ट परफेक्ट में यू यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट कि नहीं, गॉन,
go, went, gone, third form of verb. Okay, so do you remember past perfect अभी हमने पढ़ा है had, you use helping verb as had and third form of verb. So this sentence is seeming like this is happening first and this one is at last. तो जब भी पहले आए सेंटेंस में तो जो लास्ट पार्ट है सेंटेंस का उसकी पहले होने की सेंस आती है और इसकी बाद की, ये बाद में होने की सेंस आती है. ओके, so you will just have a look कि how बाद and पहले how they deal with the sentence कि what part of sentence is coming first and what is coming at the last. Why had you not gone in? आप अंदर क्यों नहीं गए थे, है ना? आप अंदर क्यों नहीं गए थे? Before he came outside. वह बाहर आया, वह बाहर आया. So it is in past. वह बाहर आया. So combinedly what you will say, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे? Why had you not gone in before he come outside? Okay. Okay, so now with this, if it is clear, is it clear? Is it clear to all, or you want more? You want me to more explain it more? Hello, is it clear? So we have to do exercise now. So if it is clear, we'll move forward. Okay. So let us do our exercise. मैंने उससे बात कर ली थी. So you have to form its English. You translate it in English. मैंने उससे बात कर ली थी. दिस इज पास्ट परफेक्ट, है ना? ऐसा सेंस आ रहा है ना कि हो गया था, मतलब ये बात हो गई थी मेरी उससे. तो एक कुछ ऐसे सेंस आ रहा है कि कभी पास्ट में मैंने उससे बात कर ली थी, हो चुकी थी, है ना? तो जब भी परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कि काम का हो चुकना. अगर आपको लगे सेंटेंस से कि काम हो चुका है तो यू यूज पास्ट परफेक्ट, बट पास्ट फॉर कि काम कोई पास्ट में हो चुका है. आई हैड टॉक्ड टू यू, मैंने उससे बात कर ली थी. मैंने उससे बात कर ली थी. उससे, नॉट तुमसे, उससे. I had talked with him. Yes. I had talked to him. Talked to him. Yes. I had talked to him. I had talked to him. Okay. So पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था. पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था. पहले, है ना? मतलब चोर पहले भागा था, पुलिस बाद में आई थी, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है ना सेंटेंस का. तो चोर भाग गया था. द थीफ हैड, पहले जो लास्ट पार्ट है सेंटेंस का उसे बनाओ. द थीफ हैड, भागना. द थीफ हैड एस्केप्ड, है ना? भाग जाना. यहाँ पे भागने का होता है कि मतलब भागने का कुछ ऐसे सेंस आ रहा है कि वो बच के भाग गया, है ना? तो द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड. यस. द thief had escaped, 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 है ना? thief had escaped before the police arrived. Yes. The thief had gone before come the police. See, in the before come the police नहीं, before the police you will use past indefinite. past indefinite में sentence बनाओगे. Before the police
हेलो। जी सुनैना जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर मुझे आ सुनैना रही। जी की आवाज, सुनैना जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, चेंज कर रही है लग रहा है कुछ। एक मिनट, वो जुड़ रही है दोबारा से। दो मिनट वेट कीजिए, दोबारा से वो जुड़ रही हैं। पूछता हूँ। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ हाँ, ठीक ठीक। हम्म। रिकनेक्ट हो रही, दोबारा जुड़ रही हैं। कल हमारी क्लास 7 बजे होगी, तो आप सब उपस्थित हो जाएंगे ना? जैसे मुझे कुछ नाम दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश रायल जी, अनम्यूट कर लीजिए जब तक मैडम आ रही हैं। कल जी अपनी सर। 7 बजे क्लास होगी मॉर्निंग में, क्योंकि फिर उनके सिस्टर का एग्जाम है कुछ, मतलब कहीं पर इंटरव्यू वगैरह। तो इसलिए अपनी कल 7 बजे क्लास होगी, 8:30 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास। सॉरी सर, 7 बजे तो मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। कितने बजे आ जाएंगे? मैं आ पाता हूँ 8:30 9 बजे। अच्छा अच्छा, कल तो 7 बजे करना पड़ेगा अपने को। और किसी को टाइम का जी, इशू है क्या? हिम्मत से रिकॉर्डिंग मान डाल के देना जाए। सर कल की ना फिर। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो पड़ेगी ही। जी सर। हम्म। ठीक है, हमारी मैडम लग रहा है आ गई हैं। सुनैना जी, आ गई हैं आप? हाँ, ठीक है. हम्म। So let us resume. One. Okay. So where were we? मैंने उससे बात कर ली थी स्टार्ट. ओके, सो उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था. उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था. सो व्हाट इज इट्स? दे हैड bathed in the गंगा. जी कैपिटल आएगा. यस. They have bathed. They had bathed in the Ganga. They had, yes. Okay, so क्या उसने तुम्हें किताब दे दी थी? क्या उसने तुम्हें किताब दे दी थी?
क्या उसने तुम्हें किताब दे दी थी? वाई हैड ही गिवन यू अ बुक? सी वाई का मतलब है क्यों, है ना, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं क्यों आ रहा है? क्या उसने तुम्हें किताब दे दी थी? इट इज सिंपली यू आर सेइंग, एक सेंटेंस में जस्ट क्या लगा रहे हैं, उसने तुम्हें किताब दे दी थी, फिर आप पूछ रहे हो क्या, तो ऐसे सेंस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। ओके, हैड ही गिवन, हैड ही गिवन योर बुक? क्या उसने तुम्हें, हैड ही गिवन योर बुक, क्या वह तुमसे मिल नहीं चुका था? क्या वह तुमसे मिल नहीं चुका था? हैड ही नॉट मेट यू, मीटिंग नहीं आएगा इसमें, हैड ही नॉट मेट यू, मेट टू यू नहीं, मेट यू, हैड ही नॉट मेट यू, करेक्ट, यस। तुमने इतना सारा कार्य कैसे पूरा किया था? कैसे, हाउ, है ना, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हाउ हैड यू, हाउ हैड यू, आगे ट्राई टू मेक द सेंटेंस, हाउ हैड यू, आगे पूरा किया था, कंप्लीटेड, है ना, हाउ हैड यू कंप्लीटेड, पूरा करना, कंप्लीट, हाउ हैड यू कंप्लीटेड, आगे इतना सारा कार्य, ट्राई टू मेक द सेंटेंस, हाउ हैड यू कंप्लीटेड दिस मच वर्क, इतना सारा कार्य, है ना, दिस मच वर्क, हाउ हैड यू कंप्लीटेड दिस मच वर्क? ओके, सो मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया था? मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया था? मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया था? What had you done? जाने के पहले क्या किया था? तो जाने के पहले क्या किया था, मैं पहले क्या हो रहा है, मेरे जाने के पहले, पहले ये देखो कि नहीं, सोच, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया था, तो इसका मतलब मेरे जाने मतलब मैं गया पहले, और तुमने कुछ, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बाद में हुआ, मेरे जाने, तो दिस वन विल कम इन पास्ट परफेक्ट एंड दिस वन विल कम इन पास्ट इंडेफिनिट। तुमने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू? ओके, व्हाट डिड यू डू आफ्टर, व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन? व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन? सी, देखो, सी अगर बाद आता है तो हमेशा जो पिछला सेंटेंस है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो पहला पहला पार्ट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। बाद का मतलब होता है कि बाद से कैसा पता चलता है कि ये चीज पहले हुई, ये वाला पार्ट पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है ना, तो बाद वाले पार्ट को यू विल जस्ट राइट इट इन पास्ट इंडेफिनिट। ओके, हमेशा पिछला पिछला पार्ट पहले लिखते हैं। डिड यू नॉट गो आउटसाइड योर होम? घर के बाहर नहीं गए थे। ओके, तो हियर व्हाट विल कम, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई, व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन, जाने के बाद। ओके, सो अगला, ओके, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था?
What had I told you? Told you, कहा था. Okay, so I will tell you, I will clarify more on this. Tell, say, or talk. Okay. So अभी आप you just see, have a look. Here you will use told. Okay. What had I told you? Okay. क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था? क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था? Had they paid? क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था? Had they paid the electricity bill? ओके. had पहले आ जाएगा, फिर उन्होंने they, फिर क्रिया paid. Paid is what? Third form of verb. Had they paid the electricity bill? बिजली का बिल, electricity bill. Okay. Had they paid the electricity bill with a question mark. Okay. क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे? तो पहले आ रहा है, पहले. कैन यू सी? पहले आ रहा है. तो पहले में क्या होता है? अगर पहले आए सेंटेंस में तो इसका मतलब जो पहले के बाद, ये जो है वो पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है. ओके. सो ये इसको आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में. बच्चे खामोश हो गए थे. बच्चे खामोश हो गए थे. और क्या अध्यापक के आने से पहले? बिफोर. आगे बिफोर द टीचर, आने से पहले. रीच्ड होता है पहुंचने से पहले. केम, आना मतलब कम. बिफोर द टीचर केम. कम, आना मतलब कम. ओके. ओके. क्वाइटेड नहीं आएगा. क्वाइटेड, चिल्ड्रन हैड क्वाइटेड. I think quieted cannot come. Can you think of another word here? Quieted is not correct. For the time being, खामोश होना, मतलब हाँ, you can say कि being quiet, but you cannot use here quieted. Quiet is not correct. The children had become silent. Had become, became, become, became, become. The third form of verb, खामोश हो गए थे. The children had become silent. Before the teacher came. Before the teacher came. Okay, did come नहीं. The teacher, हमेशा जो helping verb है वो बिना बात के यूज नहीं करते. हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं? या तो क्वेश्चन पूछना होता है हमें पास्ट इंडेफिनिट में. अगर हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं? या तो आप क्वेश्चन पूछना होता है या आपको नहीं कहना होता है. डिड नॉट, या फिर क्वेश्चन अगर पूछना है तो डिड ही, है ना. लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो डिड नहीं आता. उसमें क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, so you just use second form of verb. So the children had become silent. Became, become. So become is third form of verb. The children had become silent before the teacher came. Okay, came, not did come. Okay. लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी? Why, क्यों. क्यों मतलब why. लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी? Why
the girls, why the girls why had the girls, yes correct, why had the girls not returned, yes, लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, लौटना मतलब रिटर्न, लौटने की इंग्लिश क्या होती है, रिटर्न, ओके, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव, आने की क्या इंग्लिश होती है, कम, ओके, और जाने की क्या इंग्लिश होती है, गो, ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, आना आना जाना और लौटना और पहुंचना, so these are all different, so you use different words for all these, तो लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, why had the girls not returned with a question mark, okay, तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था, तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था, why, क्यों, why, had, yes, it is a past perfect tense, so you will use had, why had you not given me his address, उसका पता, his address, okay, why had you not given me his address, okay, so question, so I think we'll continue this exercise, the remaining part of the exercise tomorrow, so let us take some questions. Before taking questions, I want to clarify on yesterday's doubt, so so as you have asked, what is the difference between until, till, still and yet, okay, so now let us discuss when to use until and when to use till, and what is the meaning of still and yet, okay, so with until, first I will tell you what is about until and till, so until कब आता है, जैसे सेंटेंस में मीनिंग होता है तक, है ना, जैसे अगर आपको ये कोई काम कब तक हो रहा है ना, so like कि I am studying till 8 o'clock, है ना, I will study till 8 o'clock, मैं पढ़ूंगी कब तक, 8 बजे तक, so you will use till और until, जब भी ऐसा सेंस up to मतलब तक, है ना, इतने तक, so till and until जो होते हैं वो बिल्कुल सेम ही, इनका सेम ही मीनिंग है, you can use till और you can use until, okay, so like these are two words, बहुत पहले till use करते थे, लेकिन until is a form that is newly introduced in the English literature, so what happens कि until जो है वो थोड़ा फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है, जैसे कुछ फॉर्मली लिखते हैं तब until यूज होता है, और अगर इनफॉर्मली अगर आप जस्ट बात कर रहे हो तो ज्यादातर till यूज होता है, till, लेकिन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर आप till की जगह until यूज कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है, ओके, till और until दोनों सेम ही है, कुछ भी गलत नहीं होता है, इन दोनों की मीनिंग एकदम सेम होता है, तक, है ना, तो कोई भी जो भी हो रहा है वो कब तक हो रहा है और कब कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, तो अगर आप ये मीनिंग जो है वो till और until से आता है, लाइक आई विल बी बिजी until 5:30 टुडे, मैं 5:30 बजे तक व्यस्त रहूंगी, है ना, आज मैं 5:30 बजे तक व्यस्त रहूंगी, तो तक 5:30 बजे तक, until, so the same sentence you can write with till, so I will be busy till 5:30 today, so till is used here and until can also be used, so there is no difference, okay, ये तो बात हो गई until और till की, now let us see what about still and yet, okay, still जो है, still और yet जो है वो बहुत ही क्लोजली, उनका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होता है, ओके, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे जो स्टिल है वो कैसे यूज होता है, अब भी, जैसे कि कोई काम शुरू हो चुका है लेकिन आप बता रहे हो कि अब भी वो कंटिन्यू हो रहा है ना, कि आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, मतलब मैंने ये काम, मतलब काम मैं कर रही थी पहले लेकिन अभी भी मैं कर रही हूँ, तो ऐसी सेंस आती है कि कोई काम शुरू हुआ था लेकिन वो आप अभी तक कर रहे हो, तो स्टिल, ओके, तो ऐसी सेंस आती है कि द वर्क हैज बीन स्टार्टेड in the past and now you are continuing, so it has started and you are continuing, so still जो है मतलब क्या आप अभी तक सो रहे हो, ऐसे बोलते हो ना, क्या आप अभी तक सो रहे हो, so are you still sleeping, so still अभी तक, है ना,
So अभी भी, like अभी तक और अभी भी there is a very small difference कि अभी भी सो रहे हो, कुछ ऐसा सेंस आता है ना, कि आप पहले से सो रहे थे लेकिन अभी प्रेजेंट में भी सो रहे हो. Okay, so still is used at that place. Like you can look at this example. It is still raining. अभी भी बारिश हो रही है ना, अभी भी बारिश हो रही है, मतलब पहले से हो रही थी बारिश, लेकिन you are saying कि it is still raining, अभी भी हो रही है बारिश. I still live in London. I still live in London. मतलब मैं पहले भी लंदन में रह रही थी, लेकिन I still अभी भी मैं still लंदन में ही रह रही हूँ. They have been married for 30 years and are still in love. अभी भी मतलब उनमें प्रेम है, still in love. Okay, तो still का एक और यूज भी होता है, जैसे आपको कुछ कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट बोलनी होती है, जैसे he was sick but he still went to work. वो मतलब जैसे ऐसे बोलना होता है ना कि वह बीमार था तब भी वह गया घर, वह काम करने गया तब भी, है ना. तो जब कंफ्लिक्ट बताने, चाहे वो बीमार था लेकिन तब भी वो काम करने गया, तो इस सेंस में भी स्टिल यूज होता है. ही वॉज सिक बट ही स्टिल वेंट टू वर्क. ओके, वह बीमार था फिर भी वह काम करने गया. आई स्टडीड अ लॉट दो आई स्टिल डिडंट पास द टेस्ट. मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैं बहुत पढ़ा, तब भी मैं टेस्ट को पास नहीं कर पाया, है ना, तब भी. तो आर यू क्लियर कि स्टिल कब यूज होता है, कि कोई काम जो है वो या तो पहले से अब तक हो ही रहा हो, है ना, still it is going on. Okay, so what is the difference, what is the difference, slight difference in the meaning of yet compared to still. yet क्या होता है, येट जो होता है वो होता है कि ज्यादातर ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. कैसे यूज होता है कि कोई काम हुआ नहीं है, मतलब ये इंडिकेट करने के लिए कि या तो कोई काम हुआ नहीं है या कोई काम जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो अभी भी पूरा नहीं हुआ. ओके, लाइक टू आस्क इफ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज हैपन. क्या आप पूछ रहे हो कि जो आप सोच रहे हो होना चाहिए था अब तक, वो हुआ है कि नहीं हुआ है. जैसे हैव द टेस्ट रिजल्ट्स अराइव्ड येट, क्या 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 परीक्षा के नतीजे आ गए हैं, येट अभी तक आ गए हैं, तक, है ना. तो अप टू नाउ, अभी तक. तो स्टिल कैसे यूज हो रहा था, अभी भी, है ना, अभी भी आपने काम नहीं किया, मतलब आप पहले से कोई काम कर रहे थे लेकिन अभी भी आपने काम नहीं किया. लेकिन येट कैसे यूज होता है, अभी तक. सो आई हैवंट डन माई होमवर्क येट, मतलब अभी तक मैंने काम नहीं किया, है ना. सो कैन यू सी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो लाइक सी द एग्जांपल्स, हैव द टेस्ट रिजल्ट्स अराइव्ड येट और आई एम हंग्री, इज डिनर रेडी येट. क्या डिनर रेडी हो गया है. ओके, सो क्या डिनर, क्या खाना तैयार हो गया है अभी तक, है ना. तो यू यूज येट देयर. और आई हैवंट डन माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक नहीं किया है अपना होमवर्क, है ना, येट, अभी तक. इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock एंड स्टीव हैजंट वोकन अप येट, अभी तक नहीं उठा, स्टीव जो है वो अभी तक नहीं उठा. सो यू आर यूजिंग येट. तो वो फिर उनका अट गया, फिर वो कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग रुके थोड़ा सा, आ गई हैं जी. hello, is it clear how, what is the difference between still and yet? So have you got? Yes, ma'am. Clear. Okay, so if you have any other doubts, so you can ask now. So related to today's whatever we have studied today, so you can ask.